Okay. चल गया। हाँ, स्क्रीन पे लगा। ठीक है। Okay. So my last session, hopefully, but this will be followed by an exercise as well with jointly with Dr. Sajid Saab. So now the focus we will have is on how can we measure the performance of social protection programs. अभी तक जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं इसमें एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि वी नीड टू मेजर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम. वी नीड टू मेजर दोज प्रोग्राम्स द परफॉर्मेंस. व्हाट डू वी मीन बाय दैट परफॉर्मेंस? सो हर आउटकम के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन सा वेरिएबल है या कौन सा इंडिकेटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन आउटकम ऑफ इंटरेस्ट. तो इसलिए understanding the social protection indicators is very important for us, not only for impact evaluation but also to track the progress of the implementation of the program, and also to compare the implementation of two different programs simultaneously mean, or maybe for government as well, to look after the extent to which the program is effectively implemented. So I'll quickly talk about the one challenge that we are having, all of us are having, is that, and you must have been familiar with this, that internationally different organizations use different indicators and different databases as well. But that's a challenge that we do not have a uniform definition of those indicators. So, for example, the OECD will be defining in a bit differently than the World Bank definition. Maybe the Asian Development Bank has its own parameters. So there is slight overlapping or kind of uh, change in the definitions of those and the way they actually measure. So that's why that's a challenge for us. And the second thing is that not only the international organizations, but the national statistics offices and researchers responsible for the collecting of social protection data, they also do not strictly adhere to those standards. Maybe it varies because of their own limitations. They don't have this capacity to do, but also we do not have a uniform indicators so that we use that indicator just like we refer to sustainable development targets indicators. So you can see here, I mean, for high income countries, there are different institutions that they use those indicators for tracking the progress of social protection programs. For example, European Union, as you can see, for high income and for low income countries, for middle income countries, we have like 3 to 4 institutions that they use different indicators in different countries. And most of those indicators are overlapping as well. But you can see there that the nature of data collection for those indicators also vary. For example, some institutions they use household survey to measure that indicator, and some use the aggregate measures of the country such as expenditures data. So that's why there's a kind of confusion which indicators could be the most relevant for us. All are actually relevant, but we need to be clear about it. So when we define performance indicator, we need to look into the what it actually measures. That's the function of that particular program that's being implemented. Then what's the methodology or the data used to measure that indicator? That also is important for the validity of that indicator. And then the extent to which it can be interpreted and monitored over time consistently is also important for the definition of indicators. So all these should be the qualities of indicators. What indicator does not measure should also be known. Sometimes an indicator is used for an outcome of interest for which that indicator is actually not built, and the data is not intended for that particular outcome of interest. So all these questions are impact evaluation question, maybe tracking the performance of the social protection programs. But for all of these questions, we need to understand indicators. जैसे आपने देखा yesterday कि हमने आपको एक
इवैल्यूएशन सिनेरियो दिया था जिसके अंदर हमने कहा था कि इनपुट, एक्टिविटीज, आउटपुट और आउटकम्स हैं। फिर हमको कहा था कि आप सजेस्ट कर लें कौन से इंडिकेटर्स यूज होंगे। सो यू वी नीड एक्चुअली टू नो कौन सा इंडिकेटर आउटकम इंडिकेटर हो सकता है, कौन सा इंडिकेटर इनपुट इंडिकेटर हो सकता है और कौन सा इंडिकेटर एक्टिविटी इंडिकेटर हो सकता है, मे बी द इम्पैक्ट इंडिकेटर हो सकता है। सो फॉर दैट वी एक्चुअली नीड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इंडिकेटर्स। मैं इसको दोबारा रिप्रोड्यूस करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, and the only difference I have made is those blocks in the bottom there. So I have like there are some examples of those indicators. So when we talk about inputs, and if I ask you how do we measure input, so for example, the social protection program, a cash transfer program, what would be the input of that program? The spending by the government in the first place. That's the first input, right? That goes into the process. Then how do you measure that input? That, let's say, how do you measure spending of the government? You can measure that as a percentage of GDP or as a percentage of the social protection spending as well in that particular program. It varies a lot. So similarly, um, for every step in this process of the social protection program, we need to be clear about the possible measurement of those particular activities. There are some things that really cannot be measured, in quantitative terms. There could be some qualitative things that we also need to look at, but also you can use, some indicators, some proxy indicators for that. For example, think about the process. How do you measure the process, particularly when it comes to some tracking the progress of the process? So there is a bit confusion about that. So yes, legislation can be of the process, but making rules and regulation can also be a process, in line with that, the objective of the social protection program. And also the trainings, workshops conducted, capacity building of the people, that can also be the part of the process. But there is something that you can also measure, that's the number of beneficiaries registered, yeah, being registered, being enrolled, something like that. That can also be. But it does not mean that, okay, if something, there is a progress, there is a process, so it can never be an output. Sometimes there is a thin line between the output and the process. So for example, the number of beneficiaries enrolled or registered are, let's say आपने कैंपेन कंडक्ट कराई है लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमने हेल्थ कार्ड इनिशिएट किया हुआ है और आप लोग ना इस हेल्थ कार्ड को मैक्सिमली यूज करें। सो ये इन्फॉर्मेशन कैंपेन आप चला रहे हैं, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। लेकिन उसके नतीजे में जितने लोग अपटेक ले रहे हैं या उसको एनरोल करा रहे हैं, उसमें हो सकता है आप उसको आउटपुट कंसिडर कर लें। इट कुड बी उनकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन, दैट कुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट एक्चुअली लीड्स टू द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। सो ये चीजें एक्चुअली लॉजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी को लीड कर रही है। So there are a lot of other indicators as well. I'll just quickly go over it. Broadly speaking, the social protection indicators can be categorized into these 5 categories. Measures of coverage. And what do you mean by coverage? Is that who is and who is not receiving benefits, right? And adequacy is that the relative size of social protection transfers compared to the household income. Just like मैंने पिछले सेशन में मेंशन किया कि if the cash transfer goes to a household, we need to look into what is the average income of that household. तो क्या वो adequate है कि नहीं है? For example, 50% consumption है household की, या 50,000 income है, 50,000 rupees, और उस household में monthly जो है वो 10,000 rupees जा रही है। तो आप फिर ये देख सकते हैं उससे कि that 10,000 rupees is what percent of that 50,000 income of the household? Is that sufficient or not sufficient? That's another thing, but that's the measure that you can use for adequacy of the program, कि program adequate है कि नहीं है उस particular प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेट्स से आप कह रहे हैं कि हाउस होल्ड की कंजम्पशन कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप करें। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफर अमाउंट, ये भी जरूरी है कि टारगेटिंग एक्यूरेसी कितनी है उसकी, किस हद तक उस प्रोग्राम को आपने टारगेट किया हुआ स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को, जो पोरेस्ट ऑफ द पोअर है फॉर एग्जांपल, या डिसेबल पीपल है वगैरह वगैरह। द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इफेक्ट। सो हम पॉवर्टी या इनइक्वालिटी के ऊपर जो इफेक्ट होता है प्रोग्राम का, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का, what are the indicators that we can use to measure the impact on poverty? That should be one of the outcome variables for us. And then inequality is another key objective of the social protection program. आप सबको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस पूरे प्रोग्राम में कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का एक मकसद ये तो है ना, डेफिनेटली, दैट जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, बेसिकली उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए somehow. So we can expect that there could be an effect on the inequality. But how do we measure inequality?
लोग कितने डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम. तो ये there is a measure for that, and you must be familiar with the Gini index and so. And then measures of efficiency. We're talking about the cost effectiveness of the program. Efficiency means output divided by input. How much we achieve by using those resources. हमें उसको cost effectiveness भी देखना चाहिए कि how effective was that. So that उसके लिए भी measure होना चाहिए. So there are measures for that. So let's begin with the coverage quickly, but I'll just quickly go over it. Coverage, two type का coverage है basically. एक ये है कि legislation में coverage है, जिसकी kind of आप उसके लिए कह लें कि that's a legal coverage, but that does not mean that that's effectively being implemented. So जो reality में implement हो रहा है, या जहां तक हम implement कर पा रहे हैं, basically that's the effective coverage, जितने लोगों तक benefits पहुंच रहे हैं. लेकिन जो गवर्नमेंट की लेट्स से लेजिस्लेशन के अंदर है कि इतने जो जो ये बेसिक है ना, जो जिसको हम क्या कहते हैं कि सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स, सो वो वहां तक पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है. सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट. देन देयर इज आल्सो वेरिएशन इन द स्कोप, एक्सटेंट एंड लेवल ऑफ कवरेज. आप इसकी डिटेल्स को आगे जाके कर सकते हैं. And then, okay, let's go one by one quickly. How do we measure coverage indicators, and what are those indicators that can be used as a measure of coverage? Proportion of the population covered by at least one social protection cash benefit. So that proportion, that ratio can be the measure, right? You can use that as well. And how do you measure that? That's measured as a ratio of population receiving cash benefits under at least one social protection program divided by the social protection function are actively contributing at least one social security scheme to total population. Then the proportion of children covered by social protection benefits, the ratio of children divided by the household receiving children or family cash benefits वगैरह. So जो जिस कैटेगरी को टारगेट किया हुआ है उसके अंदर उसका क्या प्रोपोर्शन है जो रिसीव कर रहे हैं बेसिकली. So that is the proportion of those beneficiaries per group targeted under that particular program. इसी तरह बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हैं, और हर इंडिकेटर की अपनी मेजरमेंट है, और लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स कवरेज से रिलेटेड है. और हम ये 7-8 इसलिए हैं कि हर इंडिविजुअल सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की जो अपने इंडिकेटर्स है उसको हमने फर्दर स्पेसिफाई किया हुआ है, तो मैंने इसलिए डिजाइन किया था. मैं इसको स्किप ओवर इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए अगर आप देखना चाहें डिटेल में देखें. लेकिन जो जो पॉपुलर है और जो ज्यादा रेलेवेंट हमारे पास इंडिकेटर्स हैं वो है एस्पायर की. वर्ल्ड बैंक की जो एस्पायर डेटाबेस है उनके इंडिकेटर्स हैं. And there are some good reasons why we can confidently use the Aspire indicators for social protection programs, performance tracking, and the implementation. One of the reason is that they use household surveys, right? They use household surveys and to track the progress of programs. So that's why it can be relevant for us. But I'll just quickly go over the definition, how they defined it, and how they use that indicator there. So here is coverage. And then the percentage of population participation in social protection program and labor programs, including direct and indirect beneficiaries and all this. That's the definition of the coverage indicator. And then you can use that indicator to see what happens to those segments of the population in terms of income. आप poorest of the poor के ऊपर भी देख सकते हैं to what extent the social protection programs and labor they have covered the poorest of the poor people there. और आप देख सकते हैं कि पूरे population का कितना proportion जो है वो covered है, ठीक है ना. और आप ये भी देख सकते हैं कि जो low income people है, poorest हैं, उनका कितना परसेंटेज कवर है उसमें. क्विंटाइल को हम क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं अगर पूरी पॉपुलेशन को आप एक कतार में खड़ा कर दे, इसलिए कि उनकी इनकम डिफर करती है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, और एक लाइन बन जाएगी आपके पास. तो जो जो बहुत ज्यादा मालदार हैं वो इस तरफ हो जाएंगे, जो बहुत गरीब है इस तरफ, और उस पूरी कतार को आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट्स से. तो जो लोवेस्ट क्विंटाइल है दैट विल बी द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. जो सबसे राइट साइड पे क्विंटाइल है दैट विल बी द रिचेस्ट ऑफ द रिच. सो आप देख सकते हैं कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स उन सब जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम उसको कवर करती है कि नहीं करती, तो हमें ये देखना चाहिए. तो इसलिए इसको फर्दर हम सेग्रीगेट करते हैं. इसी तरह कवरेज के अंदर डुप्लीकेशन भी पॉसिबल है.
एंड ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि एक हाउस होल्ड जो है वो एक प्रोग्राम के लिए इंटाइटल है या एलिजिबल है, एट द सेम टाइम द सेम हाउस होल्ड माइट बी रिसीविंग सम अदर इंटाइटलमेंट, सम अदर बेनिफिट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज बेनिफिट्स जा रही हैं, ठीक है ना, एक हाउस होल्ड को, एट द सेम टाइम सेम हाउस होल्ड को कोई और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स दी जा रही है या कोई और हेल्थ बेनिफिट दी जा रही है। जो ओवरलैपिंग है उसको भी मेजर किया जा सकता है कि कितनी ओवरलैपिंग है उसमें। So households participating in multiple programs can be one of the measure of the overlapping of the social protection program। कि एक प्रोग्राम है, हाउस कितने परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड हैं कि जो कि एक प्रोग्राम में इनरोल्ड है। अगर दो में इनरोल्ड हैं तो आपके पास ओवरलैपिंग बढ़ती है, अगर तीन में इनरोल्ड है तो ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको आप यूज कर सकते हैं, एंड दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ दैट ग्रुप दैट यू हैव एक्चुअली टारगेटेड। एक्सपेंडिचर्स को बड़ा इजीली हम कर सकते हैं, इजीली इन द सेंस कि दैट्स नॉट अ माइक्रो मेजर, दैट्स अ मैक्रो मेजर, राइट, दैट्स एन एग्रीगेट मेजर कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना स्पेंड करती है। सो नॉर्मली एक्सपेंडिचर इज मेजर्ड is government outlays on social protection, including expenditure on services transfer provided to individuals and household, number one, plus expenditure on health. Normally जो social assistance programs है या social protection programs है, that those expenditures are separately reported, and then the expenditures on the health services is separately reported. So दोनों को मिला के आप कह सकते हैं कि that is the total government outlays या spending on social protection program. उसको मेजर कैसे करें ज्यादा प्रिसाइजली? आप उसको जीडीपी का प्रोपोर्शन ले लें, what percent of the GDP has been spent on social protection program, right? So क्योंकि GDP आपके पास एक ऑलरेडी नॉन मेजर है, तो आप उसका एक परसेंटेज निकाले तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि ओवर द इयर्स व्हाट हैपेंड टू द सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स मेजर्ड एज अ परसेंट ऑफ द जीडीपी ऑफ दैट गवर्नमेंट। इसमें फायदा यह है कि आप क्रॉस कंट्री एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि दिस इज नॉट मच यूज्ड विद इन कंट्री कंपैरिजन, दिस इज नॉर्मली यूज्ड अक्रॉस कंट्री कंपैरिजन, एंड क्योंकि माक्रो मेजर है तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं। लेकिन विद इन कंट्री आप ये भी देख सकते हैं कि विद इन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर कितनी स्पेंडिंग होती है। सो अगर लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस है for example on one hand, on the other hand there is a social assistance program in terms of cash transfers। अब आप देख सकते हैं कि टोटल सोशल प्रोटेक्शन स्पेंडिंग गवर्नमेंट की जितनी है वो आपके पास एक डिनोमिनेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर पे आप लिख लें कि हेल्थ इंश्योरेंस पे कितना स्पेंड करती है, तो वो जो रेशो निकल आएगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग spent on health insurance as a percent of the total spending of the government on social protection program। तो इस तरह भी आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, ये फर्दर है यानी एक्सपेंडिचर्स, बाय एक्सपेंडिचर व्हाट डू यू मीन एक्चुअली? एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंट एंड लेबर मार्केट प्रोग्राम्स। आपने जो पढ़े हैं जितने तीन मेजर कैटेगरीज है ना, उन तीनों कैटेगरीज के ऊपर गवर्नमेंट की टोटल आउटलेस जितनी भी हैं उनको एग्रीगेट करके आप देख लें, दैट्स द टोटल एक्सपेंडिचर। आप अच्छा, रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज इंट्रोड्यूस सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर्स, एसपीआई। पहले इसको सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स कहा जाता था, ये फार्मूला थोड़ा सा अपडेट भी हो गया है। सो यू कैन आल्सो लुक इनटू द दैट सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर। वो एग्जैक्टली द सेम है जिस तरह हमने कहा कि दैट इज द परसेंटेज ऑफ द स्पेंडिंग, थैंक यू, प्रोपोर्शन टू जीडीपी। लेकिन उसमें यह है कि आप जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज है उसको डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि relative to GDP, what is the proportion of government spending in that particular beneficiary group। तो उससे ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर टोटल जीडीपी का 6% यूज होता है सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का, लेकिन विद इन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम किसी कैटेगरी के ऊपर, लेट्स से कैश ट्रांसफर के ऊपर या सोशल असिस्टेंट के ऊपर कितना परसेंट स्पेंड होता है तो हमें आइडिया नहीं है। तो आप उसको डिवाइड कर लें उससे, नंबर ऑफ बेनिफिशरी से, और उसका रिलेटिव उसको डिनोमिनेटर में जीडीपी डाल दें तो आपके पास आ जाता है। यू डोंट डू दिस बेसिकली, the Aspire has already done this, and but the data provided to Aspire is actually given by you normally, क्योंकि ये सारा डेटा जाता है तो आप ही के ऑफिस से जाता है नॉर्मली, सो योर रोल इज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। ओके, देन adequacy, that actually means that the total transfer amount received by the population participation in social insurance, social safety nets, and unemployment benefits and active labor market program is a share of their total welfare। So हमें दो चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, what is the total welfare and what is the proportion
of transfer amount in these three areas, what is the amount of that? आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वेलफेयर इज द टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर. सबसे आसान वेलफेयर का जो मेजर है वो ये है कि अगर आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर ले तो हाउस होल्ड का वेलफेयर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑन एवरेज वो कितना मंथली या डेली या जो भी है उनकी स्पेंडिंग कितनी है, हाउस होल्ड की एक्सपेंडिचर कितनी है, या कंजम्पशन कितनी है उसकी, या अगर आप कंजम्पशन नहीं लेते तो आप इनकम भी ले सकते हैं. लेकिन एग्रीगेट, उसको एग्रीगेट करके हम यूज कर सकते हैं सिंपली जो जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम या उनकी कंजम्पशन दोनों को हम उस एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर ले सकते हैं उसके. These are the indicators of adequacy. That means the benefit level of social protection programs. Total transfer amount received by all beneficiaries in a population group is a share of the total welfare of beneficiaries in that group. अगर आप किसी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे पोरेस्ट ऑफ द पोर ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है ना, सो व्हाट इज द टोटल वेलफेयर ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पोर इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, आपके पास आ गया नंबर. एंड देन द टोटल अमाउंट ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर और द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय दोस पोरेस्ट ऑफ द पोर, आप उसको न्यूमरेटर में डाल दें, आपके पास रेशो आ जाएगा, दैट यू कैन कॉल द परसेंटेज ऑफ दैट. एंड देन यू कैन लुक एट पोर फॉर पोर्स, फॉर मिडिल इनकम पीपल, फॉर हाई इनकम क्लास एज वेल. अच्छा, दूसरा भी एडिक्वेसी का ये है कि एवरेज पर कैपिटा ट्रांसफर भी यूज किया जा सकता है. दैट्स द एवरेज ट्रांसफर अमाउंट सोशल प्रोटेक्शन एंड लेबर प्रोग्राम्स अमंग प्रोग्राम बेनिफिशियरीज पर कैपिटा, राइट. सो हमें पता है कि जीडीपी जो है वो बेसिकली क्या है. नॉर्मली हम कहते हैं कि दैट इज द एवरेज इनकम प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, राइट. सो हमारे पास एक रफ आइडिया ये आता है कि दैट्स दी वी कैन गेस दैट दैट कुड बी रफली द एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स. हमें पता है कि उसके अंदर पोरेस्ट ऑफ द पोर का इनकम इतना नहीं होता नॉर्मली, लेकिन आप उस एडिक्वेसी को उसके साथ रिलेट भी करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन ये जीडीपी नहीं है बेसिकली, लेकिन एवरेज ट्रांसफर अमाउंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एंड लेबर प्रोग्राम्स अमंग द प्रोग्राम बेनिफिशरीज ओनली, राइट. सो उस उन उन उस सब सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का एवरेज इनकम क्या है, ठीक है ना, और उस एवरेज इनकम का कितना प्रोपोर्शन सोशल प्रोटेक्शन ने उसको दिया हुआ है, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम ने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कैश ट्रांसफर के जरिए दिया हुआ है, उसको कितना करता है. एंड देन टारगेटिंग एक्यूरेसी, benefit incidence and beneficiary incidence. So we can also measure that. The percentage of benefits going to the beneficiary group relative to the total benefits going to the population. अगेन ये परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज ऑफ बेनिफिट्स हैं कि टोटल पॉपुलेशन को जितने बेनिफिट जा रहे हैं उस पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन उस बेनिफिशियरी ग्रुप को जा रहा है. फॉर एग्जांपल डिसेबल पीपल, सो टोटल पॉपुलेशन पे कितना स्पेंड हो रहा है, कितने बेनिफिट्स जा रहे हैं नॉर्मली, एंड व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम गोज टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप. तो उसका अगर बहुत कम बनता है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ परसेंटेज. तो आप जब लेटर ऑन एक्सरसाइज करेंगे एस्टर के साथ, तो वो आप देख लेंगे कि कितना प्रोपोर्शन उसमें है, तो आप उसको इंटरप्रेट भी करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस आप उसको रिफ्लेक्ट कर लें. अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं आता हूँ, बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम. हम इम्पैक्ट को कैसे मेजर करते हैं, मैं क्विकली जाता हूँ उसके ऊपर, उसके इंडिकेटर्स के ऊपर. सो नॉर्मली हमारा जो आउटकम है ना सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, वो बेसिकली ये है कि पॉवर्टी कम हो और इनइक्वालिटी कम हो, ठीक है ना. सो ये हमारे दो आउटकम्स है बेसिकली सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के. आप इसको लॉन्ग टर्म आउटकम कहें, अगर आप रिजल्ट्स चेंज को देख लें तो दैट्स एक्चुअली द लॉन्ग टर्म एग्रीगेट आउटकम. अगर आप देख लें कि ओवरऑल व्हाट हैपेंस टू द सोसाइटी, अगर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स चले 5 साल 10 साल तक चले, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, व्हाट हैपेंस टू the poverty index of the country and what happens to the inequality index, the Gini index of that country. So poverty can be measured. आप सबको पता है कि हेड काउंट से भी मेजर कर सकते हैं, आप पॉवर्टी गैप भी मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं इसके. तो लेट्स से हम हेड काउंट से मेजर करते हैं. सो पॉवर्टी हेड काउंट रिडक्शन ड्यू टू सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ द प्री ट्रांसफर पॉवर्टी हेड काउंट. सो जो किसी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम से पहले जो पॉवर्टी हेड काउंट है, आपके पास एक नंबर है उसका ऑलरेडी पता है, व्हाट इज द पॉवर्टी हेड काउंट इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल. एंड देन दरमियान में लेट्स से बीआईएसपी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, 1 साल तक चला, 2 3 5 साल तक चला, एंड यू पोस्ट प्रोग्राम आपके पास उस हेड काउंट का एक नंबर आ जाएगा. आप देख लें कि व्हाट हैज हैपन. सो आप उसको ग्राफ भी कर सकते हैं, ओवर द इयर्स ट्रैक भी कर सकते हैं, एंड व्हाटसोएवर.
देन पॉवर्टी गैप रिडक्शन भी है, दैट्स आल्सो अ पॉवर्टी मेजर, राइट? गैप बेसिकली क्या है, आप में से कौन बताएगा गैप क्या है? आई मीन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंपली हेड काउंट एंड द पॉवर्टी गैप? कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे फॉल करते हैं बेसिकली? कितने लोग, मीन कि कितने लोग हैं, बेसिकली नंबर है लोगों की, सो दैट्स द हेड काउंट, राइट? लेकिन कितने फासले पे है पॉवर्टी लाइन से? व्हाट इज द एवरेज गैप ऑफ दोस पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन इज एक्चुअली द गैप, द पॉवर्टी गैप। कुछ लोग होंगे जो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल आसपास ही फॉल करते हैं, बिल्कुल नीचे, कुछ लोग हैं बहुत ही नीचे फॉल करते हैं, तो वो गैप रिडक्शन कुड बी वन ऑफ द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, कि उस गैप को कम से कम किया जाए, राइट? अच्छा जी, हम अब आते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। जी जी प्लीज छोटी सी इंटरवेंशन जो है ना मैं करना चाह रहा हूँ, प्लीज प्लीज। वो ये है कि जो सोशल प्रोटेक्शन है ना, हम्म उस पे एक क्रिटिक ये भी है हम्म कि सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कोई भी रियासत या कोई भी गवर्नमेंट ये रियलाइज कर लेती है कि अब जो पॉवर्टी है वो हमारा एक परमानेंट फीचर बन चुका है। हम्म ठीक है, तो अब इशू ये है कि हमें इस डिस्टिंक्शन को या इस एनालिसिस को भी समझना पड़ेगा कि वी स्टार्ट विद द सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव on the basis of realization कि poverty has become the permanent feature of our society or our economy। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद ही हम इसको डिजाइन करना शुरू कर देते हैं, which is very sad हम्म analysis। लेकिन मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रहा था कि डेटा इज important, significant, it informs, it enlightens, लेकिन डेटा जो है वो ग्राउंड रियलिटी को थोड़ी डिस्टॉर्ट भी करती है। सही है, बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ रही है, जो सबसे पहले दिन हम आए थे, तो जीआईजी से कोई रिप्रेजेंटेटिव था मेरे ख्याल में, उन्होंने एक बात की थी यहाँ पर कि यही लोग अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, अगर ये सारे ग्रेजुएट कर लें, डज दैट मीन दैट वी स्टॉप द सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम? बट in reality we see that social protection programs continues across countries, we can see everywhere. So the idea behind the social protection programs is that हो सकता है मालदार लोग गरीबी में भी फाल कर सकते हैं, आ सकते हैं, for some reasons there could be idiosyncratic shocks to them, जो कि किसी इंडिविजुअल फेलियर की वजह से हो सकता है, एंड देयर कुड बी सम नेचुरल डिजास्टर्स, कोवेरिएट शॉक्स, जो सबको अफेक्ट कर सकता है। तो ये भी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स का मकसद बेसिकली ये है कि वनरेबल जो भी है, वनरेबल टू पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जो भी वनरेबल है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, राइट? सो उसकी प्रोटेक्शन हमेशा के लिए इसलिए होनी चाहिए कि एनीथिंग कैन हैपन टू द सोसाइटी, एंड दोज पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द from poverty, but those people who are falling into the poverty should also be protected. So that's why these programs that normally designed are aimed at continuing once they are launched. For example, disability है, for example, that's a protection given to them. So इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिसेबल हैं बस उनके लिए है, हो सकता है कि जो एबल लोग हैं वो डिसेबल हो सकते हैं। So that's why these programs normally are aimed at continuing, as we go. अच्छा जी, हम inequality को कैसे measure I have करते a हैं? question. So I have a question, sir. अच्छा जी, इससे रिलेटेड है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन गो फॉर क्वेश्चन, जस्ट प्लीज। Previous slides related है। ये वाला अगले वाली। सर ये पावर्टी गैप, इसको हम कैसे मेजर करते हैं जी? पावर्टी गैप को, पावर्टी हेड काउंट को मेजर कैसे करते हैं सर? इस पे गाइड कर दें। अच्छा, पॉवर्टी गैप को कैसे मेजर करते हैं? और पावर्टी हेड काउंट और पावर्टी गैप को मेजर कैसे करते हैं? हाँ, तो बेसिकली हमें पता है कि पॉवर्टी लाइन हम डिसाइड करते हैं थ्रेशोल्ड। सो अगर आप पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर लें तो इसका मतलब ये है कि आप ये भी डिसाइड कर चुके हैं। और पॉवर्टी लाइन एक रिलेटिव है, जाहिर है, लेकिन आप उस कंट्री के हिसाब से नॉर्मली देयर आर सम, आई मीन statistical offices they actually decide about that, the world bank also decide about it. पॉवर्टी लाइन एक ये है कि डेली इनकम किसी खास अमाउंट से अगर कम है तो दैट्स द लाइन, राइट? वी ड्रॉ दैट लाइन। अब आप पूरी पॉपुलेशन को देख लें कि पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जिनकी इनकम उससे नीचे है। अब आप अगर ये कहते हैं कि हम एक्चुअली वो डेटा कैसे लेते हैं, तो मैंने कहा जैसे ना एस्पायर है, तो एक्चुअली हाउस होल्ड सर्वे है, उन सर्वेज से पता चलता है, और उन सर्वेज में आप एवरेज इनकम देख लें। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चनर आप फ्लोट करते हैं लोगों में से कि आपकी मंथली इनकम क्या है, ठीक है ना, तो उस मंथली इनकम को अगरचे किसी का ज्यादा कम भी होगा, लेकिन उसका एवरेज जब आएगा हमें पता है कि दैट विल बी नियरेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, कि पॉपुलेशन में ऑन एवरेज यही होगा ऑलमोस्ट। तो जब आपने वो कर दिया तो आपको ये भी पता चल गया कि एवरेज लोगों की इनकम ये है,
और उन उस क्लास में पर्टिकुलरली जो पोअरेस्ट ऑफ द पुअर है या जो बिलो है। अब आप उसके ये भी देख सकते हैं कि उसमें वेरिएशन कितनी है, ओवर टाइम कितनी वेरिएशन आ रही है, पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे फॉल करते हैं या बिल्कुल क्लोज फॉल करते हैं। अच्छा जी, हम इनइक्वालिटी को अभी देखते हैं कि इनइक्वालिटी बेसिकली इज समथिंग दैट्स अ रिलेटिव थिंग। किसी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती है। सो जो एक पर्पस है सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स का वो ये है कि जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बेसिकली द आइडिया बिहाइंड सोशल प्रोटेक्शन इज दैट कि उनसे किसी तरीके से गवर्नमेंट जो टैक्सेस है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी, उनसे ले लिया जाए और उनमें उनको दिया जाए जिनको जरूरत है इनकी ज्यादा, क्योंकि उनकी वो वनरेबल है। सो बेसिकली जिनी इंडेक्स है, इसको कहते हैं जिनी इंडेक्स, दैट्स एक्चुअली मेजर्स द difference of income between different segments of the society, right? So income की distribution जो है वो actually uniform नहीं है, हर सोसाइटी में यूनिफॉर्म नहीं है। इवन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पर हैं, जहाँ पर भी है। अब उस यूनिफॉर्मिटी अगर उसमें नहीं है तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकम, जैसे भी कुछ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, जो भी किया जाए, उसका जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, ओके, सो उस बेनिफिट को हम देख लें कि उसका मकसद ये है कि उसको स्मूथ बना रहे हैं कि नहीं बना रहा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्क्यूड, देन इसका मतलब ये है कि गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं, मालदार मालदार तर होते जा रहे हैं, और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स रादर इंक्रीज दैट गैप between the rich and the poor. So the idea is that normally social protection programs should reduce inequality. But how do we measure inequality? So ये एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, आप खुद इसको मेजर भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल एक सिंपल एक्सरसाइज है, आप कंसीडर कर लें। माइक तो नहीं है ना, चले आप कंसीडर कर लें कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है कि 5 लोग, ठीक है ना, इनकम पॉपुलेशन। और फ्री ट्रांसफर प्रोग्राम, कोई भी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, कोई भी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, इससे पहले उनकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन ये है 5 लोगों में। किसी की इनकम जो है वो 5 रुपीज है, किसी की इनकम 45 रुपीज है और 25 रुपीज है। आप देख सकते हैं कि मिस्टर ई मिस्टर डी जो है वो ज्यादा मालदार है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी से। द आइडिया ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम इज दैट अगर उनको बेनिफिट दिया जाए, सो हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस टू दिस इंडिविजुअल्स इनकम एज कंपेयर्ड टू हिज इनकम। लेकिन हम उसको पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन के शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम इनइक्वालिटी को एक पॉपुलेशन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल देख लें तो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हम दूसरों के साथ उनको कंपेयर करते हैं। इसलिए लेट्स सपोज बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांसफर 1 एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, किस किस को मिला है, किस किस को नहीं मिला है, तो 0 and 1 एक्चुअली आइडेंटिफाई हु रिसीव्ड एंड हु डिड नॉट रिसीव द बेनिफिट 1. So for example, Mr. A, Mr. B received, Mr. C did not receive, Mr. D received, and Mr. E also received. Let's say this program was targeted, I mean, was distributed in such a way that like that was the targeting strategy. So, and what was the value of that benefit? अगर हम वैल्यू को देख लें, suppose this is the amount of that benefit in local currency units. ये exactly ऐसी है जैसे हम उसकी adequacy को देखते हैं ना. So how adequate was it? It was this much. Like this is the amount being distributed among them. So total amount distributed was this much. The share of the total benefit one received by those individuals in the population is this much. How did we get this number? Total amount 20 rupees है spent social protection program की, population 5 लोग हैं basically. So इस बंदे को 9 रुपीज मिले हैं. So 9 divided by 20 क्या है? 45% बन जाता है. यानी 45% share of the total benefit distributed in the population. इसी तरह मिस्टर बी को भी 45 मिला है परसेंट शेयर, मिस्टर सी का तो वैसे भी नहीं है बदकिस्मत, डी का 5% मिला है और ई को 5% मिला है। चले जो भी इसकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन दैट्स वन ऑफ द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड। एक सिनेरियो है आपके पास, फिर मैं उस नोट को पढ़ लूं, उसमें कोई ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है। Go back to imagine poverty. Okay. Right. So then let's say there is another program, social protection program called Benefit 2, and that is the targeting strategy is different. That is targeted such that Mr. B received
Mr. C received, Mr. A did not receive, Mr. D received one, and so the total number of beneficiaries of program 2 is 4, and the total number of beneficiaries of program 2 were also 4. Then again the same thing, the value of the benefit is that is the amount of benefit. Total 15 rupees were distributed, and what becomes the share of the amount received? 7%, 13%, 13%, and 67%. That becomes 100% of the amount distributed, right? Clear है? अच्छा जी. अब हम देखते हैं कि what happens to the income post transfer after the transfers were made. तो हमें इसको देखना पड़ेगा. मैं इसको वैसे पर्पसली छोड़ रहा हूँ आपके असाइनमेंट के लिए, लेकिन प्लॉट करता हूँ इसको. सो मैं आइडिया आपको देता हूँ कि व्हाट इनइक्वालिटी इज, व्हाट जीनी इंडेक्स इज, एंड हाउ डू वी मेजर दैट. सो जीनी इंडेक्स इज बेसिकली, अगर हम उस क्यूमुलेटिव इनकम ऑफ इंडिविजुअल देख लें और क्यूमुलेटिव इनकम ऑफ द पॉपुलेशन देख लें, ये दो वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएं. अगर एक्स एक्सिस पे हम क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पॉपुलेशन लिख लें और वाई एक्सिस पे हम क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स लिख लें, तो हमारे पास एक इस तरह का कर्व आएगा. स्ट्रेट तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह आएगा. इसको लॉरेंस कर्व कहते हैं नॉर्मली. लेकिन ये जो आए हैं, ये पिछले टेबल से आए हैं, तो मैं पर्पसली आपको नहीं इंटरप्रेट कर रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ एक लाइन का मैं बता रहा हूं. ये जो लाइन है ना, 45 डिग्री की लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है बेसिक, इसका मतलब ये है कि जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो भी इनकम है, वो अगर हम शेयर ऑफ द पॉपुलेशन के साथ उसको देख लें, सो दैट्स यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट? पॉपुलेशन फ्रॉम पोअरेस्ट टू रिचेस्ट, अगर आप उस पॉपुलेशन को इस तरह कर लें, प्लॉट कर लें कि दैट इज poorest population is ordered in such a way that falls on this side of the axis, this one, and like ये consider कर लें कि ये richest लोग हैं यहाँ, फिर ये कम richest लोग हैं, फिर ये कुछ median लोग हैं, ये सबसे poorest लोग हैं, ठीक है ना? और इस साइड पे क्या है कि share of the income. अब ये जो ग्राफ है, बेसिकली ये ग्राफ पिछले टेबल के ऊपर प्लॉट किया गया है, यानी उसमें जो ट्रांसफर दिए गए थे उन ट्रांसफर को रिफ्लेक्ट किया गया है. यहाँ पर की भी है, आप इसको पढ़ेंगे, दैट्स पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. लेकिन अब आप सवाल के जवाब ये दे दें कि which segment of the society benefited the most from those two programs in terms of inequality. और inequality normally क्या है? The difference between this line and any of these lines. I mean, यहाँ पर inequality की lines हैं, यहाँ आपको पता है, इसको हम compare कर रहे हैं basically, लेकिन the difference between Lorentz curve and this straight line is actually the उसकी जो आप कह लें कि कोएफिशिएंट है, या जो अमाउंट है बेसिकली, दैट्स एक्चुअली द जीनी इंडेक्स, वहीं से हम रिफ्लेक्ट करते हैं. जितना कम होगा उतना बेनिफिट होगा. हाँ, दैट स्पेस, हाँ, द स्पेस जितना कम होगा उतनी इनइक्वालिटी कम होगी. सो अब आपका काम ये है, मैं आपको डॉक्टर साजिद, could we ask someone to print that out, or maybe you can just use this table by just looking at the slide here, and you can we can ask you to answer those two questions. मेरा ख्याल है ग्रुप ज्यादा बेहतर है, डिस्कस भी कर लेंगे आपस में. So we can ask them to, जबरदस्त हो गया. फिर तो उसके अंदर ये जो आपने व्हाट्सएप के ऊपर ये असाइनमेंट भेजे हैं, can we also send the assignment page to them? उसमें एक पेज के ऊपर दोनों चीजें, टेबल भी है और फिगर भी, तो और क्वेश्चन भी है जिन्होंने आंसर करना. स्लाइड तो डिफरेंट है ना, करना पड़ेगा. तो इस एक्टिविटी का आउटकम बेसिकली ये है कि we should be able to see which program benefits which segment of the society just by comparing a simple population of 5. आप इसी को जनरलाइज करते हैं तो कोई पॉपुलेशन का एग्जैक्टली सेम सिचुएशन होता है. प्रोसेस यही है. just by looking at the graph आप देख सकते हैं.
पोस्ट ट्रांसफर कह रहा हूँ पोस्ट ट्रांसफर पोस्ट ट्रांसफर ये नहीं होगा या चार्ट दे दिए हसन सबको. वी हैव ओनली 10 मिनट्स जी. टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब 3 कर लेंगे. नो इश्यूज प्लीज. ये सारा इतना जेंडर एक्सक्लूजन क्यों हो गई है जी? आप इनके साथ आ जाएं जी. एक नहीं जेंडर खुद डिस्क्रिमिनेट कर रही है ना, अपनी जगह से उठी नहीं है जेंडर. आइए प्लीज ग्रुप्स का हिस्सा बनिए. आइए. हम सारा दिन कहते हैं जेंडर इंक्लूड करें, जेंडर खुद एक्सक्लूड हो रही है. प्लीज आइए. पिक अप एनी ऑफ योर फेवरेट ग्रुप्स जी प्लीज. हमें पता है कि आपको नहीं आता. डोंट वरी कि आपको बहुत सही आंसर आपसे कर रहे हैं. द आइडिया इज टू प्रैक्टिस. और असाइनमेंट इज ऑन द व्हाट्सएप जी आप लोगों के पास. प्लीज. यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम 2 मिनट्स.
सर मार्कर दे दीजिएगा टेबल्स के ऊपर, अगर यहाँ आई थिंक है सबके पास। परफेक्ट। फ्लैश नहीं मारेगा, फ्लैश नहीं मारेगा, सेटिंग दूसरी की है ना, यार फ्लैश वाली फोटो है। नहीं आएगा, खाली इस पे नहीं आएगा, यूं करेगा फिर आएगा। हाँ ना, ये देखो ये रेड है ना, अभी ये भी फोकस नहीं है। एक दफा दबाते हो ना तो ग्रीन पे वो करता है फोकस, ठीक है, ग्रीन पे फोकस करता है। अगर ये डी फोकस है ना, आप नीचे करके ऊपर कर दो दोबारा से, ठीक है, फिर इसको दोबारा क्लिक भी करते हैं, प्रेस लैपटॉप ये उतारने लगे हैं नीचे। मैंने फोटो खींची है यार, साफ सुथरी फोटो आनी चाहिए, बहुत बेहतरीन है होगा। और जगह से करनी है यूएसबी ले आओ, ये आएगी तुम्हें कॉपी चाहिए तो सीधा, अभी तो नहीं चाहिए, अभी कॉपी अगर अगर चाहिए तो बता दो, मैं दे देता हूँ, बस मैंने लैपटॉप में कॉपी कर ली साफ लिखा हुआ। सेंट्रल जो था ना, इसका प्रॉब्लम ये
कैन आई हैव योर अटेंशन जी? जो लास्ट पेज आपको दिया गया है, यू कैन सी टू नंबर्स 11% एंड 30%. आपने हमें बताना है कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या मतलब है इसका. ये एक्चुअल जीनी कोफिशिएंट है, एक्चुअल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है यूएसए की 2016 की, और दो नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे वर्टिकल एक्सेस पे और एक्स एक्सेस के ऊपर, जिनको थोड़ा सा छुपाया गया है, 11% और 30%. हाउ वुड यू इंटरप्रेट इट, कि ये क्या बता रहा है जीनी कोफिशिएंट के कॉन्टेक्स्ट में, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में? एनी ग्रुप हु वांट्स टू रिस्पॉन्ड फर्स्ट कैन रेज हैंड. एक्सीलेंट. मैंने तो वैसे कल ही बता दिया था, मैंने हमेशा जो स्टैट है वो चीटिंग करके पास की थी, लेकिन कम से कम इतना मैं बता सकता हूँ. अच्छा, ये जो है ना, इन्होंने जो डाटा भी जो भी कलेक्ट किया है उसको प्लॉट किया है. इन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कॉम्युलेटिव पॉपुलेशन ली है, और वाई एक्सिस के सर कॉम्युलेटिव शेयर फ्रॉम वेल्थ जो है वो प्लॉट किया है, डाटा जो भी है, और एक क्वालिटी लाइन जो है इन्होंने ड्रॉ कर दी है. अब हमने देखना ये है कि जितना ये जो नीचे वाला लोरेंस कर्व जो है, अगर क्वालिटी लाइन के पास जितना ज्यादा होता तो इतनी इक्वालिटी ज्यादा होनी थी. अब आप ये देखें, ये कर्व बन रहा है. इसका मतलब यह है कि अमेरिका में भी जो वेल्थ, जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि अमेरिका में भी जो वेल्थ है वो इतनी ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो कि उनकी सोसाइटी में वैसे नजर भी आती है. ठीक है, बस 30 सेकंड मोर, अगर आप कुछ और कहना है. अच्छा, चले, खुदा हाफिज. एक्सीलेंट जी. फ्रॉम दिस ग्रुप जी, एनीवन, हाउ वुड यू इंटरप्रेट इट जी? आप पढ़ रहे हैं अभी? कोई वॉलंटियर ग्रुप जी, दोनों में से किसके पास आ सकते हैं हम? आप तो इतना पढ़ने में टाइम ले रहे हैं ना. यू नो कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि मुझे एक मिनिस्टर ने बुलाया या उनके सेक्रेटरी ने, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का मैक्रो मॉडल बनाना है, पाकिस्तान का मैक्रो मॉडल, इकोनॉमी का पूरी का. तो मैंने कहा कब तक चाहिए? तो उन्होंने कहा सोमवार को चाहिए. एंड वी वर सिटिंग ऑन थर्सडे. तो 4 दिनों में पूरे पाकिस्तान का मैक्रो मॉडल बनाने का गवर्नमेंट कहती है. तो आप एक तो ग्राफ को लेके इतना टाइम लगा रहे हैं. प्लीज जी. सर, इससे जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो ये है कि सर, जो लोएस्ट, जो गरीब से गरीब तर है, उनके पास 11% ऑफ द टोटल वेल्थ है, और जो अमीर वाला पोर्शन है उनके पास 30% ऑफ द टोटल वेल्थ. थैंक यू जी. यहां से कौन हमें रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जी? प्लीज जी. जो भी समझ आया बता दीजिए, हमें खुद भी समझ नहीं है, डोंट वरी. सर मुझे लगता है कि जैसे सर ने कहा कि जो उनके पास लोअर क्वांटाइल है उसमें 11% था, और जो अपर क्वांटाइल है 100 उसमें 30% आ रही है. मुझे कब किस तरह समझ नहीं आ रही, बट मुझे ये आइडिया है कि अगर ये 100% जाएगा तो ये परफेक्ट इक्वालिटी होगी, लाइन ऑफ इक्वालिटी, और अगर 1 को जाएगा तो ये कम से कम होगी. सॉरी जी, ये मैं जरा इनसे ले लूं एक. जो सर बेसिक समझ आ रही हो तो यही है कि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. मतलब जो आपका पॉपुलेशन साइज दोनों तरफ से छोटा है, लेकिन जो कह सकते हैं कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द वेल्थ ऑफ 90% टोटल. थैंक यू जी. आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी लास्ट में, एंड देन आई विल सी कि ये क्या कह रहा है ग्राफ. असल में उस ग्राफ में ये जिनी जो वैल्यू है वो भी दिया गया है 0.86, और इस ये इट्स इंडिकेटेड दैट व्हेन द जिनी वैल्यू इज इक्वल टू 0 इट्स परफेक्ट, सो इट मीन दिस इज परफेक्ट. थैंक यू जी. आपको लगता है ये ग्राफ इतना आसान होता तो हम आपको दे रहे होते? रिमेंबर, यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे होंगे जो कार्नर्स हैं. अगर आप 11% और 30% पे एक दफा दोबारा से देख सकें, जो 11% वाली लाइन है वो जो एक्स एक्सेस है उससे थोड़ा सा या बिल्कुल ओवरलैप कर रही है या उससे नीचे जा रही है. सो दिस इज नेगेटिव वेल्थ
जो कि पुअर्स को है, डिस सेविंग्स या बारोइंग, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 30% का फिगर है, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल फिगर इस पूरी डायग्राम के अंदर। ये वो वेल्थ है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल है, नाकाबिले तकसीम है, ओलिगार्क्स के पास है। क्योंकि अगर आप ये देखें, ये वाई एक्सेस के बिल्कुल ऊपर है, उसको ओवरलैप कर रही है। ये वो इर्तकाज दौलत है जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जो अमीरों के हाथ में पड़ा है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सो दिस इज ओलिगार्क्स शेयर इन एनी इकोनॉमी, जिसको आजकल हम एलीट कैप्चर का लफ्ज जो है वो सुन रहे हैं। अमेरिका में जो सबसे बड़ी रीजन है 0.86% आने की, जो 0.86 आने का जीनी कोफिशिएंट का, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनइक्विटेबल सोसाइटी इन द वर्ल्ड। अमेरिका की जो है उसमें मेजर ये है कि उनके पास जो टॉप बिलियनियर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ये वो बिलियनियर्स का शेयर है, और ये इस तरह से आ रहा है कि ये गरीबों में तकसीम नहीं हो सकता। एप्पल का जो शेयर आ रहा है वो किसी भी गरीब को नहीं मिल सकता, इवन वो सैमसंग वालों को भी नहीं मिल सकता। सो दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेबल। जो इनकम है, इर्तकाज दौलत है, ये उसको जो रिफ्लेक्ट करता है। माय लास्ट पॉइंट जो बड़ा ही अहम था, क्योंकि हम ये कोर्स सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से कर रहे हैं, एक सवाल आया था कि सोशल प्रोटेक्शन शायद इजहार है किसी भी मुल्क में पॉवर्टी के सीमेंट होने का, पॉवर्टी के परमानेंट हो जाने का। दिस इज फॉल्स। सोशल प्रोटेक्शन का काम पॉवर्टी रिडक्शन कैश दे के नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन एक डेवलपमेंट पॉलिसी है, और इसका पॉवर्टी के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह आपकी एक्सपोर्ट्स ना भी हों तो आपको एक एक्सपोर्ट ट्रेड पॉलिसी चाहिए जो आपकी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है। हम बुनियादी तौर पे इस ग्रुप में ये कह रहे हैं कि सोशल प्रोटेक्शन इज नॉट ए चैरिटी, इट्स नॉट ए बेनेवोलेंस। सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सेफ्टी नेट्स, सोशल इंश्योरेंस इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी। जिस तरह बाकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की जरूरत है, उसी तरह इस इकोनॉमिक पॉलिसी की भी जरूरत है, बिकॉज इट गोज बियॉन्ड पॉवर्टी। हमने रिसेंटली एक स्टडी की थी, आई एम श्योर मैंने पहले भी जिक्र किया था, विल पुट इट ऑन ग्रुप, शायद ऑलरेडी भी किया है। स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोटेक्शन reduces poverty, reduces inequality, increases employment, increases fiscal space, increases GDP growth rate, and it improves environmental protection as well. So social protection just not limit to cash transfers या जो poverty है। और हम SDPI पे ये कह रहे हैं कि social protection is a development policy of any country, और ये उतनी ही अहम है जितनी के बाकी policies हैं। उसके लिए तो वी शुड नॉट सी इट एज ए चैरिटी और एज ए बेनेवोलेंस, इट्स ए मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक पॉलिसी। थैंक यू। आई थिंक वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। ये इनके सॉल्यूशंस हैं जी, अगर आप लोग कोई लेना चाहे, ये सॉल्यूशंस हैं जी इनके। ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन है जी, एक कॉपी उठा लीजिएगा जी। इनका जो सॉल्यूशन है ये, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। ये इनका सॉल्यूशन है जी, यू कैन सी। जो डॉक्टर साहब ये ले लीजिएगा, और जो दूसरी असाइनमेंट है आप उन पर जरा पूछ लीजिए कि कमेंट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए वन बाय। ओके जी, वी आर कमिंग टू यू अगेन। जो पहली असाइनमेंट थी उस पे आपका कमेंट विद इन 30 सेकंड। जी जी, नहीं वो वाले। अच्छा, इसमें जो पहली असाइनमेंट थी ना, उसमें देखें जो बेनिफिट 1 है, अगर हम उस फिगर को देखें, इसे देखें, तो वो बेनिफिट 1 जो है वो सेगमेंट ए और बी को, जो पहले तो 2 बातें उन्होंने पहले बताई वो जरा बतानी जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर एक उन्होंने बताया था पॉवर्टी लाइन और एक था पॉवर्टी गैप। पॉवर्टी लाइन ये है कि जिससे नीचे वाले लोग जो हैं वो गरीब हैं, पॉवर्टी से ऊपर वाले जो हैं वो हम उन्हें वेल्थी या कहने के गरीब नहीं कंसिडर करते। पॉवर्टी गैप ये है कि वो जो पॉवर्टी लाइन है उससे वो नीचे कितने हैं, दरमियानी जो उसका है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर हाइपोथेटिकली कहते कि थोड़ा खत्म, अच्छा नहीं, वो उसके बाद ही वो समझ इन्हें तब ही आएगा जब मैं वो गैप, नहीं वो उसमें इनइक्वालिटी का पूछा है ना उन्होंने, तो उसको
आप देखें बेनिफिट 1 जो है वो सेगमेंट ए और बी को ज्यादा मिला है, और बेनिफिट 2 जो है वो सेगमेंट सी और डी को ज्यादा मिला है। और ओवरऑल इनका जो इम्पैक्ट जब आखिर में देखा है तो आप देखेंगे कि जो इनइक्वालिटी जो है वो फिर बढ़ी है, क्योंकि पॉवर्टी गैप को कम करने के बजाय इसने थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी मतलब डी और ई के पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा था, उन्हें इन द एंड जो है जो इनकम पोस्ट ट्रांसफर है वो फिर ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये कि इक्वालिटी जो है वो बढ़ी है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब वेलकम टू फॉर लास्ट रिस्पॉन्स इन सारी चीजों के ऊपर। सो लेट मी पॉवर्टी गैप सिंपली, अगर आप सादा लफ्जों में, ये वो इनकम है जो आपको रिक्वायर चाहिए गरीब लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए। अगर ये सिंपल सा है पॉवर्टी गैप का, क्या आप पॉवर्टी मेजर कर ले कि 500 लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए आपको पैसों की कितनी जरूरत है, वो डिपेंड करेगा कि कौन कितना गरीब है। जब उन सबको जमा कर देते हैं यू गेट पॉवर्टी गैप। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये है कि जो एब्सोल्यूट टर्म में तो सेगमेंट ए और सेगमेंट बी बेनिफिट किया है दोनों इंटरवेंशन से एब्सोल्यूट टर्म में। अगर इंडिविजुअली देखें तो पहली जो बेनिफिट था उसमें सेगमेंट ए और बी है, और जो दूसरी है उसमें सेगमेंट डी और ई उन्होंने बेनिफिट किया। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में जो ओवरऑल फ़ायदा हुआ है 300% इंक्रीज हुई है इनकम ए की, और 200% इंक्रीज हुई है बी की, तो उसमें तो वो हुआ है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि ओवरऑल इम्पैक्ट, इनइक्वालिटी डिक्रीज तो हुई है लेकिन वो जो कर्व का ट्रेंड है वो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्पैरिटी सेम है, गैप कम हुआ है लेकिन बंदों का ट्रेंड वही है। थैंक यू। साहब क्लैपिंग ना करें वरना सारे यही जवाब देना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन है बेनिफिट विच सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बेनिफिट द मोस्ट, वो तो ए और बी है बेनिफिट 1 में, और बेनिफिट 2 में ई है। और ओवरऑल इम्पैक्ट अगर इसका देखें तो हमने सबसे पहले लिया है गरीब, जिसकी इनकम जो है वो 280% इंक्रीज हुई है, और जो अमीर तर है उसकी इनकम जो ई है उसकी इनकम 124% इंक्रीज हुई। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि इनइक्वालिटी कम हुई है इसमें। अमीर की इनकम 124% इंक्रीज है और गरीब की 280% इंक्रीज है, तो ओवरऑल इनइक्वालिटी कम हुई है। थैंक यू जी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रेशोज या परसेंटेजेस, वेरी रिस्की टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स ऑन रेशोज। लेट्स सी, मेरी सैलरी 100 रुपया है और वो 200 रुपये हो जाती है, तो ग्रोथ इज 100%। आपकी 5,000 है और 7,500 होती है, ग्रोथ इज 50%। आपको 2,500 रुपया मिला है, मुझे सिर्फ 100 रुपया मिला है। सो परसेंटेजेस आर वेरी रिस्की टू इंटरप्रेट अगर आपके पास बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट नहीं। मेरे जो यहाँ पे समझ है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसमें ये कि जो बेनिफिट 1 है वो पुअर सेगमेंट को फेवर कर रहा है, और जो बेनिफिट 2 है वो रिच सेगमेंट को फेवर कर रहा है। अगर हम ग्राफ को देखें तो बीच वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो स्टैंडर्ड शो कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है बेनिफिट 1 का, तो वो अगर आप देखें वो ज्यादातर वो ऊपर गया हुआ है और फिर ऊपर स्टेबिलिटी आई है उसमें, और वो रिच सेगमेंट को फेवर कर रहा है। तो एक्चुअली तो ये लॉरेंस कर्व का वो जो कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे वो मतलब इनइक्वालिटी के साइड पे जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है क्वेश्चन 1 का आंसर तो मैंने पहले से ही बता दिया कि लाइक बेनिफिट 1 जो है वो पुअर सेगमेंट को फेवर कर रहा है, बेनिफिट 2 रिच को फेवर कर रहा है। तो उसका जो है ओवरऑल इम्पैक्ट जो है दोनों ट्रांसफर का ये है कि जो बेनिफिट 1 है उसमें जो है वो पुअर सेगमेंट को फेवर कर रहा है, उसमें इनइक्वालिटी कम है अगर आप देखें कंपेयर टू बेनिफिट 2। और बेनिफिट 2 जो है वो रिचर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को फेवर कर रहे हैं, उनको एड्स दे रहे हैं। तो आई थिंक जो बेनिफिट 2 है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कम है, इनइक्वालिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू। ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि रिचर जो है वो रिच होंगे और पुअर जो है जी ओके इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो इट इज द फर्दर अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइन। थैंक यू जी। सब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, जल्दी भागता हूं ग्राफ के ऊपर। तो I'm just left with 1 minute only। आपका अटेंशन चाहिए मुझे वहां से बिल्कुल।
So most of you are right to say कि बेनिफिट 1 और बेनिफिट 2 के जो है बेनिफिट्स जो है वो वेरी करते हैं सेगमेंट। जो मैंने सेगमेंट का पूछा तो इंडिविजुअल का नहीं पूछा, ए और बी का। सोसाइटी में सेगमेंट्स, बाय सेगमेंट वी एक्चुअली मीन कि पोरेस्ट ऑफ द पुअर या रिचेस्ट ऑफ द रिच। सो आइडिया बेसिकली ये है कि ये जो है यहाँ पर शेयर ऑफ बेनिफिट 1 रिसीव्ड एंड शेयर ऑफ बेनिफिट 2 रिसीव्ड। आप इसकी डॉटेड लाइन को देख लें, ये एक ये है। सो यहाँ तक जब है इसका मतलब है यहाँ से जब इंक्रीज आया है तो इसका मतलब यह है कि इस बेनिफिट ने सिर्फ रिचेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट किया हुआ है और इसने अर्ली जो पोरेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी उसको बेनिफिट किया हुआ है। रिचेस्ट के ऊपर है इफेक्ट बट दैट्स प्रोपोर्शनली वेरी लो। अब हम जब कहते हैं कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या है बेसिकली, सो ये बेसिकली प्री ट्रांसफर का लाइन है, ये लॉरेंस कर्व है, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं। दिस इज द लाइन ऑफ sort of the difference between this line and this straight line was the inequality before the transfer, before 2 transfers, and then this is the overall Lorentz curve after the both transfer. So overall inequality कम हुई है, लेकिन जब हम दोनों benefits को compare करेंगे, so benefit 1 was progressive social protection program and benefit 2 is regressive social protection program, right? इसका मतलब ये है कि benefit 2 जो है वो रिचेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट कर रही है और बेनिफिट 1 जो है रिलेटिवली इज बेटर। अगर आपने डिसाइड करना है कि व्हिच वन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इससे इनइक्वालिटी कम तो होती है ओवरऑल, बट व्हिच टाइप ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम कुड बी सिलेक्ट एज द बेस्ट वन इज द फर्स्ट वन दैट टारगेट्स द मोस्ट पोरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो बस ये इसकी इंटरप्रिटेशन है और इसका वो, तो आप इसको अगर इंटरप्रेट करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ये वाला सेशन इज ओवर जी, बट द वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस ग्रुप इज कि इन्होंने आसान काम छोड़ के मुश्किल काम को पसंद किया, बजाय ग्राफ को पढ़ने के कैलकुलेशंस पे लग गए। थैंक यू जी।